Hello everyone, welcome back to She Tarot. If you are new here, my name is She, and on this channel, I share guidance through tarot, numerology, astrology, and intuitive readings to help you understand your life path and your destiny. So, guys, today's reading will be going to about be very interesting because we are going to explore that what are you destined to become in this lifetime and what kind of life your soul is meant to live. And apart from that, we are also going to check that what your future path may look like. Okay. So in this reading, we will be going to look at your past energy, your present situation, and your future destiny. So by the end of this reading, you may discover that who you are truly meant to become in this lifetime. So guys, we have three cards here. Card number one is anchor, that stability. Then we have the card lightning. We have the message disruption. So guys, we have three piles here. Pile number one is anchor, stability. Card number two is lightning, disruption. Card number three is star, divine guidance. तो मैं क्लोजली आपको एक बार कार्ड दिखा देती हूँ. ये है कार्ड नंबर वन, card number two, and card number three. And in the next 10 seconds, you will see on the screen the screenshot of the cards and ताकि आप intuitively decide कर सको that which card you are going to choose. And if your intuition feels confused, you can, also choose your pile according to your date of birth. So take a moment, guys, close your eyes, take a deep breath, and see which pile is actually calling you. Pile number one is stability. Pile number two is sudden transformation. And pile number three is divine guidance. So choose the pile that attracts you the most. And you can also, pause the video if you need more time to select, or also you can select from the timestamp in the description for your reading. So let's begin with the pile number one. Hello, pile number one. So now we are going to take out the cards for our questions here, and we are going to check for your past, present, and future. So we are going to take two cards for each. So universe, please guide me for the pile number one. So universe, please guide me that pile number one के लिए क्या message and guidance है. So guys, these cards I'm taking out for your past energies. So in the past energies, we got two of wands, four of pentacles. Present में हमारे पास है judgment. Then we have the sun. In the future, we have six of swords. Then we have the empress. And from the bottom, we have the five of swords energy. So let's begin your reading here now. हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने ये पाइल चूज किया है या आप एंकर कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हो या आपने अकॉर्डिंगली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये पाइल सिलेक्ट किया है, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या हमें बताने वाली है. एंड इस रीडिंग में हम ये देखेंगे दैट आपकी क्या पास्ट एनर्जी थी एंड अभी आपका क्या प्रेजेंट फेस है एंड फ्यूचर में आप किस चीज के लिए डेस्टाइन्ड हो. सो जो कार्ड्स आए हैं ऑनेस्टली काफी पावरफुल स्टोरी दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी पास्ट एनर्जी की. सो तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है टू ऑफ वैंड्स. तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दैट कि बचपन से ही या एक अर्ली एज में आपके अंदर एक फीलिंग थी दैट मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है एंड आप कभी भी ना एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में नहीं फील करते थे एंड यू वाज समहाउ नॉट हैप्पी विद योर एनवायरमेंट्स या आपकी सराउंडिंग्स. आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था दैट दुनिया बहुत बड़ी है एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं एंड जो लाइफ आप कहीं ना कहीं देख रहे हो शायद वो फाइनल डेस्टिनी आपकी नहीं हो सकती है, राइट? सो मेनी ऑफ यू वर ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकर्स, आई वुड से दैट आप कहीं ना कहीं प्लान बहुत ज्यादा प्लान करते थे चीजों के लिए दैट कहीं और शिफ्ट होना है, दैट कुछ नया क्रिएट करना है और यू वांट टू गिव अदर डायरेक्शन टू योर लाइफ. लेकिन उसी के नीचे हमारे पास पता है पास्ट में ना फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे. एंड यहाँ पे इस कार्ड की गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है दैट पास्ट में आपने ना लाइफ को थोड़ा बहुत डिफेंसिव मोड में भी बहुत ज्यादा लिया है.
दैट इसका मतलब यहाँ पे ये है दैट आप अपनी इमोशनल चीज़ों को किसी के साथ भी ईज़िली शेयर नहीं करते थे। आपको ट्रस्ट करने में किसी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एंड आपको फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी भी आपके लिए कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। सो यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है दैट आपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस देखे हों, जहाँ पे आपको ये लगा हो दैट मुझे अपने रिसोर्सेज़ और एनर्जी को मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा-सा रिज़र्व्ड हो गए। बट कहीं न कहीं आपके पास अभी आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। द रीज़न इज़ बीइंग अब आते हैं यहाँ पे प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ पे, ठीक है? तो वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। सो ये कार्ड कहीं न कहीं आपकी लाइफ का एक अवेकनिंग मोमेंट होता है, जब किसी पॉइंट पे आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ आपने सडनली एकदम से ये रियलाइज़ किया हो जैसे कि मुझे अपनी लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना है। सो जजमेंट कार्ड बेसिकली ये एक काइंड ऑफ अ रीबर्थ एनर्जी है। ये तब आता है जब इंसान पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर कुछ नया अडॉप्ट करना चाहता है एंड ये भी हो सकता है दैट किसी सिचुएशन ने आपको ऐसा फोर्स किया हो कि आप चेंज होने पे मजबूर हो गए या फिर आपने खुद को हर्ट किया हो। अब मुझे वही लाइफ नहीं जीनी, लाइक समथिंग लाइक दैट थॉट्स आई एम गेटिंग इन माय माइंड कि जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। सो ये मोमेंट हो सकता है दैट फाइल नंबर 1 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। अगर मैं प्रेजेंट एनर्जी की भी बात करूँ तो वी हैव द सन एज़ वेल हियर, ठीक है? एंड फाइल नंबर 1 मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, आप ना लाइफ में बहुत एक ट्रांज़िशन फेज़ में अभी चल रहे हो। आप लाइफ में बहुत स्लो मूव करना चाहते हो। आप अभी हो सकता है दैट किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आपकी पास्ट कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं हीलिंग को लेकर, कुछ ट्रॉमास हैं आपके। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे देखो एक मतलब है दैट कहीं न कहीं कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी इस टाइम पे हो सकता है। दैट लाइक आपने लाइक किसी को छोड़ा है, दैट कोई टॉक्सिक इंसान वो हो सकता है या कोई एनवायरनमेंट हो सकता है या आपने किसी को खुद से डिस्टेंस कर लिया, आपने गैप लिया है किसी से कम्युनिकेशन का एंड आप अपने ऊपर अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने लग गए हो एंड कहीं न कहीं पाइल नंबर 1 ये प्रोसेस ईज़ी नहीं होता है। सो कहीं न कहीं ये कार्ड ये शो करता है दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट कहीं न कहीं अगर हम बात करें फ्यूचर डेस्टिनी की, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, तो कहीं न कहीं देखो सक्सेस, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, एक अच्छी लाइफ, आप कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी एनर्जी में एंड आप ऐसे इंसान हो ना, अगर आपके मन में कोई चीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते एंड एम्प्रेस एक बहुत पावरफुल एनर्जी है क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ में एक अबंडेंस प्लस एक नर्चरिंग एनर्जी को प्रोसेस करता है। सो अगर आप करियर की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ प्रमोशंस या कुछ आपको हाइक मिल सकती है in the next 2 to 3 weeks and in the coming 2 months as well. So growth यहाँ पे कहीं न कहीं आती दिख रही है pile number 1 in the future for you and आप फ्यूचर में किसी ऐसे रोल में आ सकते हो जहाँ पे आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा कुछ क्रिएट करना हो। कोई किसी को गाइड करना हो सकता है या आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हो कोई वर्क एंड किसी को इंस्पायर कर सकते हो एंड लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे एंड यू विल गेट दैट कंफर्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फाइल नंबर 1 की डेस्टिनी मुझे यहाँ पे क्या बोल रही है आपके लिए? जो स्टोरी मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना, वो ये है दैट आपकी लाइफ शायद स्टार्ट हुई थी एक कन्फ्यूज़ और एक रेस्ट्रिक्टेड फेज़ से, बट ग्रेजुअली कहीं न कहीं आपने ना अपने एक्सपीरियंस से, विज़डम में उसको डेवलप किया है एंड फ्यूचर में आप ये एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो ना अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहता है एंड इवन दूसरों को भी इम्प्रूव करना चाहता है एंड यहाँ पे देखो सन प्लस एम्प्रेस की एनर्जी का कॉम्बिनेशन ना यहाँ पे ये बताता है दैट समहाउ अबंडेंस क्रिएट करना एंड पॉजिटिविटी क्रिएट करना। सो इट्स गुड। सो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी लाइफ पाथ और डेस्टिनी एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में जरूर बताना। Let's move to pile number 2. Thank you. Hello, pile number 2. So we have your card Lightning Disruption. So we are going to take out the cards for you here. Dear Universe, please guide me. So guys, ये हम आपकी past energy के लिए cards निकाल रहे हैं. Wow. And this will be for your present energy.
एंड बॉटम से हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइस ये आपके कार्ड से पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो डेफिनिटली सो पाइल नंबर 2 वी ऑलरेडी गॉट योर कार्ड्स हियर। तो सबसे पहली चीज़ है हम यहाँ पे पास्ट एनर्जी की बात करेंगे, जहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कार्ड यूजुअली ये शो करता है समहाउ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो पाइल नंबर 2 के लोगों के लाइफ में शायद काफ़ी सिचुएशंस में आपने खुद को ऐसे फेस किया है दैट लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है, जहाँ पे आपके बहुत अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या आपको लगा हो कि दैट सब आपके अगेंस्ट हो गए हों। एंड कभी-कभी 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है दैट आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो सकता है, या फिर जहाँ पे हर कोई अपनी पावर दिखा रहा हो, या फिर एक स्ट्रगल समहाउ आई एम गेटिंग दैट। सो हो सकता है दैट कोई वर्क एनवायरनमेंट हो, या कोई फैमिली हो, समथिंग इन रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ऑनेस्टली ये एनर्जी इंसान को इमोशनली थोड़ा एग्जॉस्ट कर देती है। एंड आपको कभी-कभी शायद ये भी लगा होगा दैट मुझे अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज़ है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फाइल नंबर 2 वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एज़ वेल। तो यहाँ पर ये कार्ड ये शो करता है दैट फीलिंग ऑफ लैक ऑफ लोनलीनेस, आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो। एंड इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है दैट आप कहीं न कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। कभी-कभी ये भी हो सकता है दैट आप इमोशनली लॉस भी फ़ील कर सकते हो। कभी-कभी आपको लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जैसे आपको ऐसा फ़ील हो दैट आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा हो दैट आप किसी चीज़ को लेके अकेले फाइट कर रहे हो, या चीज़ें बहुत अनफेयर हैं आपके साथ। और कहीं न कहीं ये जो ये फ़ेजेज़ होते हैं ना, इंसान को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। एंड जब भी कोई इंसान एक डिफिकल्ट फेज से गुजरता है, तो वो और भी ज़्यादा आई थिंक लाइफ को डीपली समझता है। बट कहीं न कहीं एक टर्निंग पॉइंट भी है इन द प्रेजेंट टाइम आपकी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। तो ये कार्ड कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी का एक कोर पॉइंट मुझे यहाँ पे ये बताता है दैट डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, आपके अंदर एक इनक्रेडिबल एक इनर स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब ये होता है दैट यू हैव पेशेंस, यू हैव इमोशनल कंट्रोल, यू हैव इनर करेज। आप वो इंसान हो जो लाइफ की डिफिकल्टीज से टूटने के बजाय और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। सो हो सकता है आप सामने से खुद को ऐसा दिखाते हो दैट आप बहुत ज़्यादा काम हो, या फिर आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंटरनली समहाउ यू आर वेरी पावरफुल। तो स्ट्रेंथ एनर्जी वाले लोग ऑफनली क्वाइट वॉरियर्स होते हैं। एंड आपकी कहीं न कहीं डेस्टिनी मुझे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। द रीज़न इज़ बीइंग, हो सकता है आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगी इस चीज़ को। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको एक कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जाना हो, एंड लाइक लाइफ में आपको सडनली कोई और अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करती है, एंड तो यूनिवर्स आपको एक मोमेंट पे उसकी लाइफ का एंटायर चीज़ों को एक ट्रैजेक्टरी दिखा देता है आपको कि व्हाट कैन बी द हैपन, व्हाट आर व्हाट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे यही एनर्जी दिखा रहा है दैट ये बहुत सीरियसली गाइस पाइल नंबर 2, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इट शोज़ मी दैट आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, एंड यू आर वेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके अंदर, एंड आपको कंफर्ट के साथ रहना बहुत पसंद है। कि इसका मतलब कहीं न कहीं ये है दैट आप फ्यूचर में अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट, एक कॉन्फिडेंट पर्सन देखना चाहते हो, एंड यू डोंट वांट कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड रहूं, एंड आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दो। बिकॉज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं एक हार्ड वर्क, लाइक जो आपने अपने अंदर पेशेंस रखा है, एंड एक लग्जरी या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ यू वांट, एंड यू वांट टू बिल्ड दैट नाउ। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 मुझे एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि लास्ट कार्ड अगर मैं बात करूँ दैट पेज ऑफ वैंड्स इज़ आल्सो हियर। तो ये कार्ड हमें यहाँ पे ये शो करता है दैट यू हैव न्यू एक्साइटमेंट, कि फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है जिससे आपको ये फील होगा कि कुछ नया हो रहा है मेरी लाइफ में, कि कुछ कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपको करियर में कोई न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। तो ये आपकी ग्रोथ
एंड आप कुछ नया एक्सप्लोर करोगे। सो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में ना अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है या फिर बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं एंड आपको लगता है दैट लाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर है एंड लेकिन उस एक्सपीरियंसेस ने जो भी आपके साथ पाइल नंबर 2 जितनी भी चीज़ें आप इसको शायद ट्रॉमास का नाम दो, व्हाटएवर इट इज़, आपको उन चीज़ों ने और भी ज़्यादा मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो फ्यूचर में भी यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको ऐसी पोज़ीशन में लाना चाहता है, जहाँ पे आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो। सो कहीं न कहीं ये फाइल मुझे ये स्ट्रांगली यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करते हुए ये दिखाता है दैट आप फाइल नंबर 2 एक ऐसे इंसान बन सकते हो ना दैट आप अपनी एनर्जी खुद बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो। आप अपने वीकनेस को, चैलेंजेस को, आपको कैसे किस चीज़ को फेस करना है, आपको अच्छे से आता है। सो फाइल नंबर 2 दिस वाज़ योर रीडिंग एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। Let's move to pile number 3. Thank you. Hello, pile number 3. So we are going to take out the cards for you for your past, present, and future. So for your past, we have King of Cups, Four of Cups. In the present, we have Two of Cups, Knight of Pentacles. ये card अपने आप आ रहा है. We have the Sun and we have the Fool. And from the bottom, we have the energy, the High Priestess. Hello, pile number 3. So if you have, we have your cards here. तो सबसे पहली चीज़ है वी आर गोइंग टू चेक फ्रॉम द पास्ट एनर्जी। ओके, तो हमारे पास कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स। सो फाइल नंबर 3 वी हैव योर कार्ड्स हियर। सो सबसे पहली चीज़ है आपके पास्ट एनर्जीज में जो हमारे पास कार्ड्स है वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये कहीं न कहीं ये रिप्रेज़ेंट करता है दैट समहाउ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपके अंदर एक एम्पैथी है एंड आप बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स को कहीं न कहीं समझते हो। तो फाइल नंबर 3 वाले पीपल यू आर वेरी इमोशनल इंटेलिजेंट आई वुड से एंड समहाउ आप वो इंसान हो जो दूसरों की फीलिंग्स को ईज़िली समझ लेते हो। लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते होंगे दैट ताकि वो कहीं न कहीं उनको एक डायरेक्शन मिले या एक सपोर्ट मिले। लेकिन यहाँ पर पायरा बस वी आल्सो हैव द कार्ड ऑफ फोर ऑफ कप्स हियर एंड कहीं न कहीं फोर ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो करता है दैट पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है या बहुत ज़्यादा आपने बहुत कन्फ्यूज़ फ़ील किया हो किसी चीज़ को लेकर। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप इंसान हो एंड कभी-कभी आपको जैसे ऐसा लगा हो दैट मेबी जो लोग आपके आस-पास रहते हैं वो आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं या जो आप इमोशनली कहीं न कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। कभी-कभी फोर ऑफ कप का मतलब ये भी होता है दैट इंसान अपनी लाइफ को थोड़ा-सा है ना पॉज़ करके एंड डीपली फ़ील करना चाहता है एंड देखना चाहता है कि क्या होता है आगे। सो आपने शायद काफ़ी टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कहीं न कहीं स्पेंड किया है और मैं यहाँ पे क्योंकि प्रेज़ेंट एनर्जी में यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ दैट टू ऑफ कप्स की एनर्जी एंड वी आल्सो हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो यहाँ मुझे एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है बिकॉज़ टू ऑफ कप्स कहीं न कहीं बैलेंस को शो करता है दैट हो सकता है आपका कोई ऐसा कनेक्शन या कोई पार्टनरशिप या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों पे आपका कोई रिश्ता बेस्ड हो। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है और या फिर कोई एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप आई वुड से। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें कहीं न कहीं ये दिखाता है दैट पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो मतलब सिंपल है दैट प्रेज़ेंट फेज़ में अगर आप अपनी लाइफ़ को बहुत स्लो बट स्टेडी वे में अगर बिल्ड कर रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं लेते हो लाइफ़ में। सो आप पहले ऑब्ज़र्व करते हो, समझते हो एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सो ये एनर्जी ये शो करती है दैट आप एक ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो एंड चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो एंड फ्यूचर एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे देखो बहुत अगर मैं बात करूँ ना ऑनेस्टली गाइस लाइक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है हमारे पास। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द सन। तो इफ वी टॉक अबाउट द टैरो डेक तो सबसे ना पॉजिटिव डेक माना जाता है, ये पॉजिटिव कार्ड है ये। तो ये कहीं न कहीं ये रिप्रेजेंट करता है दैट यू विल गेट हैप्पीनेस, क्लैरिटी, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। सो फ्यूचर में हो सकता है दैट आपकी लाइफ और भी ज़्यादा जॉयफुल हो
आपकी एनर्जी कहीं न कहीं शिफ्ट हो सकती है। अभी लाइफ में आप कहीं न कहीं जो भी कन्फ्यूजन या इमोशनल हैवीनेस या पास्ट में किसी भी चीज़ में ग्रेजुअली डिसॉल्व फील कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि वो कम हो रही है। एंड आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द फूल। तो कहीं न कहीं एक न्यू जर्नी। तो फ्यूचर में ना आप इस पॉइंट पे आ सकते हो दैट आप कहीं एक ऐसा डिसीजन लो दैट जहाँ पे आपकी लाइफ की शायद एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो जाए, न्यू करियर, न्यू सिटी, न्यू रिलेशनशिप एंड या लाइफ का कंप्लीटली एक न्यू डायरेक्शन। सो फूल कार्ड का मतलब होता है दैट ट्रस्ट द जर्नी। सो कभी-कभी हम अननोन पाथ पर स्टेप लेते हैं दैट तब लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैं आपकी हिडन सोल एनर्जी की बात करूँ पाइल नंबर 3, सो बॉटम डेक से हमारे पास द हाई प्रिंसेस है। सो ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है बिकॉज़ ये इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पे। मतलब कहीं न कहीं आपकी जो इनर वॉइस है, मतलब मैं बोलूँगी आपकी जो अंतर आत्मा है, हम जिसे इंट्यूशन बोलते हैं, वो आपके साथ है। आप उसे पता है नेचुरली फ़ील करते हो दैट कौन-सा डिसीज़न सही है, कौन-सा पर्सन जेन्युइन है एंड कौन-सी सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो यू आर वेरी सिलेक्टिव पाइल नंबर 3। एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हो तो आप अपनी लाइफ में एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टेक अ राइट डिसीजन एंड डायरेक्शन इन योर लाइफ। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहला नंबर जो डेस्टिनी की, तो ओवरऑल स्टोरी जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है दैट आप इमोशनली बहुत ज्यादा डीप हो, अंडरस्टैंडिंग हो। पास्ट में भी हो सकता है दैट आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स अपनी लाइफ में ट्रॉमास या फिर बहुत अच्छा फेस नहीं देखा है, बट ग्रेजुअली आपने अपनी लाइफ को थोड़ा-सा स्टेबल बनाया है। यू वांट टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू योर लाइफ एंड आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप एक अच्छे इंसान बनो एंड यू वांट योर फ्रीडम। एंड प्लस यहाँ पे सन और फूल का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं न कहीं डेस्टिनी आपका चीज़ों में साथ दे रही है। सो आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अभी। तो थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग, you have to give time to that. That's what I'm getting file number 3. तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपके साथ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। And if you want, so thank you so much. I hope this reading will be going to resonate with you. I would like you to just like, comment, and subscribe to my channel. So I will post more videos for you. So thank you so much. Love you all. God bless you all. Bye bye.